here the new arrangement of the capacitors in parallel combination. So initially we'll discuss how the combination, yeah, arrangement of the capacitor is said to be in parallel combination. So see, when two capacitors, this is the general diagram of the, the arrangement of the capacitors in parallel combination. I like to redraw it once again. See, you're having one capacitor, okay? So this is second capacitor and this is third capacitor, right? So this is the one end of the plate and this is the one end of this plate and this is one end of this plate, right? So the second end of the plate is connected here, okay, and all these are commonly combined with the battery. So this is the positive terminal, this is negative terminal, and the three capacitors are now connected with the common electrode. So this is connected with the positive electrode and this is connected with the negative electrode. So what does this mean? Okay, the each capacitor, this is capacitor number C1 and this is capacitor C2 and this is capacitor C3. Okay, so each capacitor is connected to the common potential. अब आप देखिए कि जो capacitor C1 है, then potential across capacitor C1 is V, potential across capacitor C2 is V, and potential across capacitor C3 is B. So the things to be remembered that number one, potential across each capacitor is same. Potential across each capacitor is same. पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटी सेम. नाउ देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमने पहले मैकेनिज्म ऑफ चार्जिंग पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इसको ट्रांसफ़र करेगा. ओके, राइट. सो एज इट मेंटेन द कॉमन पोटेंशियल बी, so capacitance C1, C2, C3 are different, so the charge will be different. So ये जो चार्ज है, दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस. इसके थ्रू हो जाएगा Q1 और इसके थ्रू हो जाएगा Q2 और इसके थ्रू हो जाएगा Q3. बट द नेट चार्ज यहाँ से जो यदि Q यहाँ से गया तो यहाँ भी फिर Q ही अपीयर होगा. इस चार्ज कंजर्वेशन. सो सेकेंड जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि अक्रॉस ईच कैपेसिटर, across each capacitor charge is different. चार्ज इज डिफरेंट. जो चार्ज है वो डिफरेंट रहेगा और जो नेट चार्ज रहेगा वो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. सो दिस आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. सो अब इस वी नो दैट आप इसे कैसे कर सकते हैं. वी नो दैट जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है वो आती है C इज इक्वल टू Q अपॉन V. So here Q is equal to C into V. So अब आप तीनों को ये जो चार Q की वैल्यूज़ हैं इनको आप रीडिफाइन करिए. ये Q हो जाएगा, इस सेल के लिए जो Q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा. Q is equal to नेट चार्ज है ये. It is a capacitance in parallel and potential that will remain the same. So जो Q1 होगा वो क्या होगा. Q1, it is Q2, it is Q3, राइट. सो जो Q1 होगा वो होगा C1, पोटेंशियल विल रिमेन द सेम. C2 पोटेंशियल रिमेन द सेम. C3 पोटेंशियल रिमेन द सेम. और आप इन चारों को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. सो CP इंटू V, C1V, C2V, C3V. So CP into B, capacitors in the parallel. V you can take outside. C1 plus C2 plus C3. Okay, so V के साथ भी cancel हो जाएगा. So capacitance, net capacitance in the parallel is equal to C1 plus C2 plus C3. Okay, so if there are n capacitors, यदि आप इसी तरीके से बहुत ज़्यादा capacitors जोड़ते हैं for n capacitors
इन पैरेलल, तो जो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा फॉर n कैपेसिटर्स, I is equal to 1 to any number n, it is Ci. Okay, so there are a few conclusions that could be drawn from here कि आपके पास जो नेट कैपेसिटेंस होगा, कंक्लूजन ये हो जाएगा कि जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो नेट कैपेसिटेंस is always greater than individual capacitance in series combination. Okay, so to the second part of this video, we will discuss some problem related to this, so that we can apply the concept of both series and parallel combination. अब दोनों series और parallel combination को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आपसे पूछा गया है, एग्जाम्पल नंबर 2.9 है NCERT. ओके, सो हियर आपके पास जो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, पहले पढ़िए इसको ध्यान से कि नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स है. ओके, C1 C2 C1 C2 C3 एंड C4. 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, और इसमें मैं लिख सकता हूँ जो मेरे पास गिवन है कि C1 इज इक्वल टू C2 is equal to C3 is equal to C4. All are equal to 10 microfarad. Okay. To the potential is जो common potential of the battery is 500 volt, right? Another thing as shown in figure, determine, पहले आपको निकालना है equivalent capacitance, तो आपको निकालना है capacitance equivalent. Okay. और उसके लिए, और दूसरा जो पार्ट है ए, आपको कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालना, तो पहले ए की ही बात करते हैं. तो यदि हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपका जो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो 3 कैपेसिटर है, हमने सीरीज कम्बिनेशन में हमने जब ये पढ़ा था कि जब एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक चार्ज के फ्लो करने का सिंगल रूट रहता है तो वो सीरीज कम्बिनेशन होता है. तो ये जैसे बैटरी है यहाँ, दिस इज जस्ट 500 वोल्ट बैटरी. ओके, तो ये जो तीनों ही कैपेसिटर्स हैं, ये तीनों ही सीरीज कम्बिनेशन में है. इसका मतलब चार्ज इसमें सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा. तो और इसमें ये जो कैपेसिटर है, यहाँ जो है रूट चेंज हो जाता है, तो ये वाला जो है वो इन तीनों के साथ फिर पैरेलल कम्बिनेशन में होगा. तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो 3 है ये सीरीज कम्बिनेशन में है, और इसकी कैपेसिटेंस कोई सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी. तो कैपेसिटर, अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं हम. सो जो ये सॉल्व न्यूमेरिकल है, आप उसको वहाँ देख सकते हैं. तो मैं सीधा लिख दूंगा कि जो 3 कैपेसिटर सीरीज कम्बिनेशन में है, तो उसका जो नेट रिजल्ट इन सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c. तो 1/cs इज इक्वल टू 3/c. सो cs इज इक्वल टू c/3. सो एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैराड है. सो 10 माइक्रोफैराड डिवाइड बाई 3. सो दिस इज द कैपेसिटेंस इन द सीरीज कम्बिनेशन. और ये जो C4 है, अब जो C4 और ये जो CS है, अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बन जाएगा, ये एक कैपेसिटेंस आ गई, और ये दूसरा आ गया, और ये बैटरी आ गई. ओके, पहले इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो है वो इस तरीके का बन जाएगा. अब ये है कैपेसिटेंस इन सीरीज कम्बिनेशन, और ये है C4. अब C4 और CS जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में है, तो क्या होगा, जो नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, CS प्लस C4, तो आ जाएगा 10/3 माइक्रोफैराड प्लस 10 माइक्रोफैराड. तो आ जाएगा 10 प्लस 10/3, दिस इज 40/3 माइक्रोफैराड. बाकी आप इसका हल्का मैथमेटिक्स कर सकते हैं. और ये जो पोटेंशियल है वो 500 वोल्ट है क्रॉस बैटरी. अब आप देखिए कि जो पोटेंशियल अक्रॉस पैरेलल कम्बिनेशन रिमेन द सेम. अब इसका मतलब इस
कैपेसिटर के ऊपर के किनारे भी पोटेंशियल 500 वोल्ट है, और सीरीज कम्बिनेशन के किनारे भी जो पोटेंशियल है वो 500 वोल्ट ही है। अब आपसे पूछा हुआ है उन्होंने कि द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। अब आपको निकालना है कि जो इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है और इसके ऊपर चार्ज कितना है। अब क्योंकि C1 C2 C3 एज C1, C2 and C3 are in series, यदि ये सीरीज में है so charge will remain the same, will remain same। ओके, इसके लिए जो चार्ज सेम रहेगा, पर जैसे ये वाला पार्ट पैरेलल में है तो इसका जो चार्ज है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ कि जो हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू Q अपॉन C। सो दिस इज चार्ज सेम और कैपेसिटेंस C, और चार्ज सेम कैपेसिटेंस C, चार्ज सेम कैपेसिटेंस C, क्योंकि तीनों ही 10 माइक्रोफैराड के हैं। पहले मैं C1 C2 C3 लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ये आ गया 500 वोल्ट, राइट। अब Q आप कॉमन ले लीजिए, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, या तो इसको सीधा लिख देते तो हम ज़्यादा अच्छा था। तो ये सीरीज कम्बिनेशन है, सो दिस इज Q इंटू 1/CS is equal to 500 volt. So charge across the series combination is equal to 500 into CS, that is 500 क्रॉस सीरीज कम्बिनेशन हमने निकाला था, दिस इज 10 माइक्रोफैराड डिवाइड बाय 3। ओके, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको आप काट पाट सकते हैं कितना आता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 5/3 क्रॉस 10 टू पावर 3 क्रॉस 10 टू पावर -6 कूलम बन जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 1.6 6 बनेगा, 1.67 क्रॉस 10 टू पावर -3 कूलम। एंड फॉर द सेकेंड केस, दूसरे केस के लिए आप क्या करेंगे, जो पैरेलल कम्बिनेशन में है इसको भी हम ऐसा करते हैं कि इसका जो पोटेंशियल होगा इसमें भी पोटेंशियल उतना ही आएगा, तो इसमें आ जाएगा Q प्राइम, नया चार्ज डिफरेंट होगा, और कैपेसिटेंस डिवाइड बाय C इज इक्वल टू 500 वोल्ट। सो इम्प्लाइज दैट Q प्राइम कितना होगा, 500 वोल्ट क्रॉस, यहाँ वोल्ट होगा, सो दिस इज वोल्ट, सो 500 वोल्ट क्रॉस जो इट इज 10 माइक्रोफैराड। सो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज 5 क्रॉस 10 टू पावर 3, माइक्रो मीन्स 10 टू पावर -6, ये कूलम बन जाएगा, राइट। सो दिस इज 5 क्रॉस 10 to the -3 coulomb. So this is the charge upon this is the charge on C1 C2 and C3, and this is the charge upon C4. So I hope that के इसमें जो हमने सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम दोनों को ही अप्लाई कर पाए, क्योंकि ये जो पार्ट है वो सीरीज कम्बिनेशन में था और ये जो पार्ट है वो पैरेलल कम्बिनेशन में है with this all these three capacitors. So I think you can attempt rest of the problem. So it is all about this video.